Assalamu alaikum, and a very warm welcome to all of you who are joining us on Facebook Live for this LUMS Live. This is the sixth session that we're going to have. And this is a very, very important topic today. Whether all of us get hit by the virus or not, and hopefully we won't, but all of us, directly or indirectly, will get hit by the economic conditions in the country and in the world. And the topic of today's discussion is Pakistan's economic fallout. Where do we go from here? I'd like to introduce the panelists today. Dr. Hadia Majid, she is the Assistant Professor, Department of Economics, Mushtaq Ahmed Gurmani School of Humanities and Social Sciences. Welcome, Dr. Hadia. We have Dr. Ali Chima, he's the Director, Mehboob-ul Haq Research Center, and also the Associate Professor, Department of Economics, School of Humanities and Social Sciences, LUMS. Welcome, Dr. Chima. We have once again Dr. Faisal Bari, Associate Professor, Department of Economics, School of Humanities and Social Sciences. He's also the Associate Professor of Education, School of Education, LUMS. And last but not least, we have Dr. Tahir Andarabi, Dean, School of Education, LUMS. So very warm welcome to all of you. I'll start with Dr. Andarabi. Dr. Today's topic is Pakistan's economic fallout. Where do we go from here? But before we start on that, where exactly is here? How bad is it right now in Pakistan and also globally? Give us an overview. Thank you, Adil. First of all, this shock, अगर इसको ये जो pandemic है COVID-19 का, ये जो shock है ये काफी complicated तरह से economies को affect करता है, more than kind of standard shock जो हमने पहले देखे हैं जिस तरह 2008 में financial crisis था, क्योंकि ये दोनों साइडों economy के affect करता है, demand को भी, supply को भी. सप्लाई को ये अफेक्ट करता है कि ज्यादातर जो सर्विस सेक्टर है, जिस तरह पाकिस्तानी इकोनॉमी है उसका बहुत बड़ा सर्विस सेक्टर है, उसमें लोग अब काम पे नहीं जा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग हो गई है, लोगों का वो बंद हो गया, तो एक प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो इकोनॉमी की है, चूंकि लेबर काम पे नहीं आ रहा, वो काफी ज्यादा गिर जाती है. लेकिन डिमांड साइड पे इकोनॉमिक्स का एक बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है कि एक आदमी का खर्चा किसी दूसरे आदमी की आमदनी है. सो जब लोगों की खर्चे कम होते हैं क्योंकि अब वो कई चीजें नहीं खरीद रहे, वो दुकानों में नहीं जा रहे, तो उससे लोगों की आमदनी कम हो रही है. दिस इज अ डिमांड शॉक. सो बोथ ऑफ दीज are really a stranglehold on the economy. दूसरा है कि this is a global shock, which means कि global incomes have fallen very dramatically. उनके बारे में हमें ज्यादा अंदाजा है rather than पाकिस्तान की, क्योंकि वहाँ पे जो डेटा सोर्सेज है वो हर महीने कलेक्ट होते हैं, तो हमारे पास अभी आखिरी महीनों के नंबर्स आने शुरू हो गए हैं. सो फॉर इंस्टेंस अमेरिका में तकरीबन हर 2 हफ्ते के बाद आपको अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स मिलने शुरू हो जाते हैं. सो अमेरिका में जो अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स अभी आ रहे हैं वो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की जो फाइलिंग हुई है वो अब तकरीबन 30 मिलियन लोगों ने फाइलिंग उसकी की है, which means कि this is the largest shock in the US since the Great Depression 1929. So इस सदी में और ज़्यादातर लोगों की जिंदगी में इससे बड़ा एक इकोनॉमिक शॉक नहीं आया. उससे नतीजा ये निकला है कि तकरीबन हर जगह पे लोगों ने अपने एक्सपेंडिचर्स कम कर दिए हैं, तो वो एक्सपेंडिचर जो है वो हमारे एक्सपोर्टर्स की इनकम है. So I think this shock is very large. Now in Pakistan, we have seen projections, but we don't have real-time data on the economic fallout as yet. The State Bank is probably the place where you can start getting the quickest, क्योंकि उनके पास बैंक lending का information होती है. So I think जो State Bank की भी monthly, quarterly reports आएंगी, उसमें हमें बेहतर अंदाजा होना शुरू होगा कि macro shock कैसे है. दूसरा ये है कि FBS, Federal Bureau of Statistics की prices होती हैं, उसमें हमें अंदाजा होना शुरू होगा कि प्राइसिंग क्या हो रही है. जो ग्लोबल प्राइसेस है उनका तो हमें पता चल रहा है कि तेल की कीमत है, उसका हमें अंदाजा हो रहा है कि वो कैसे है. बाकी ज्यादातर अभी प्रोजेक्शंस हैं हमारे पास. हमें अंदाजा है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें कितने लोग हैं जो थ्रू लेबर फोर्स सर्वेज ऑफ वेरियस सॉर्ट्स के इनफॉर्मल सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं. हमें अंदाजा है कि माइग्रेशन का क्या है, हमें कुछ अंदाजा है फ्रॉम डिफरेंट डेटा सेट्स के पॉवर्टी रेट्स क्या है. सो वी हैव सम आइडिया ऑफ वेयर वी आर. But I think all of this is going to come to a head next month, because next month the budget is going to be planned now, which is coming up. और उस budget के लिए हमें बहुत सारी information collect करनी होगी आगे जाने के लिए. So I think my feeling is that by the end of April, beginning of May, we will start getting a real sense of the shock. अभी जो है वो a lot of it is anecdotal and coming back from administrative reports. Dr. Faisal, budget की बात की डॉक्टर अंदराबी ने, next month, work has to be done on that. और बजट में क्रिटिकल चीज होती है टैक्स कलेक्शन की. सो आपको क्या लगता है कि अब टैक्स कलेक्शन के ऊपर गवर्नमेंट क्या करेगी और क्या इम्पैक्ट होगा इंडिविजुअल्स के ऊपर और कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर? कुछ अरसे से टैक्स नेट जरा सा को एक्सपैंड करने की भी कोशिश की थी गवर्नमेंट ने,
वो पूरा एक्सपैंड नहीं हो पाया था. So what do you see is going to happen in the next 3-4 months? अदील, इसके लिए 2-3 चीजें जहन में रखनी होगी. एक तो गवर्नमेंट खुद बहुत सारे ब्रेक्स टैक्स पे दे रही है. वो ये कह रही है कि कुछ सेक्टर्स, कुछ एरियाज और कुछ किस्म के टैक्स जो हैं वो फिलहाल ख़त्म कर रहे हैं ताकि वो जो बिजनेसेस हैं उनको थोड़ा सा ब्रेक मिल सके. दूसरा, रिफंड्स वगैरह ज़्यादा कर रहे हैं और कोशिश है उनकी कि जितना पैसा वो इकॉनमी में फ़िलहाल डाल सकें वो कोशिश कर रहे हैं डालें. सो ऑब्वियसली जहां IMF ने हमारा वो जो बड़ा प्रोग्राम था फ़िलहाल वो फ्रीज किया, उसका मकसद यही था कि जो बहुत सारे हमारे टारगेट सेट हुए थे इस साल के लिए वो अब रेलेवेंट नहीं रह गए. हमारी टैक्स कलेक्शन उतनी नहीं होगी, बट आई डोंट थिंक दैट मैटर्स एज मच एनीमोर, राइट. वो दैट वाज इन अ पर्टिकुलर सिनारियो जो हम बिल्ड कर रहे थे कि हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और उसके बाद ग्रोथ की तरफ जाना चाह रहे थे. टैक्स कलेक्शन की हमारी बहुत ज़बरदस्त टारगेट्स थे ताकि हम स्लोली डेफिसिट्स कम कर सकें और स्टेबिलिटी ला सकें और फिर जो डेवलपमेंट वगैरह के लिए पैसे हैं वो बढ़ा सकें. सो वो सारी चीज़ें तो फ़िलहाल बाहर हो गई ना. फ़िलहाल तो हमें एडिशनल मनी बाहर मुख्तलिफ तरीक़ों से हम ला के हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इकानमी को किसी तरह चलता रखें. सो इसलिए टैक्स कलेक्शन के नंबर किसी हद तक इररिलेवेंट हो जाएंगे. ना दूसरी चीज़ ये है कि लोग, जाहिर है ये जो अभी ताहिर ने कहा, एक्टिविटी जितनी कम होगी उतने ज़्यादा टैक्स कलेक्शन भी कम होगी. लोगों की सैलरीज पे इम्पैक्ट आ रहा है, बाकी चीज़ों पे इम्पैक्ट आ रहा है, बट सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो आ रहा है बिजनेसेस पे आ रहा है. हमने सारे बिजनेसेस तकरीबन 1 महीना तो टोटली बंद कर दिए और अब पार्शली उन्हें खोलने लगे. पर ये नहीं होता कि आप ये कहें कि ये बिजनेस आज शुरू हो जाए तो वो शुरू हो जाता है. एक तो पार्शल में बहुत सारी चीज़ें बंद रहेंगी, दूसरा स्टेज वाइज बहुत सारे जो हैं बिजनेसेस 1-2 महीने 3 महीने अगर बंद हुए तो शायद दोबारा खुल भी ना सकें. सो इसलिए वो टैक्स पे उनका भी इम्पैक्ट आएगा ही आएगा. वो दोनों मिला के मेरे ख्याल में तो ये जो ताहिर ने बात की थी बजट की, ये वाला बजट बड़ा मुश्किल है बनाना और ये बड़ा डायनामिक भी रहेगा इन द सेंस कि हो सकता है बजट के बाद बनाने के बाद सितंबर अगस्त में हमें दोबारा कोई रिव्यू करना पड़े और बजट को भी फिर वो जो मिनी बजट्स कहते हैं, लेकिन बेसिकली एडजस्टमेंट्स, किसी किस्म की एडजस्टमेंट्स इस साल और अगले साल हमें लानी पड़े. डॉक्टर हादिया, डॉक्टर फैसल मेंशन कि जो टैक्स नंबर्स हैं वो फ्लूइड होंगे इस दफा, और चूंकि टारगेट्स वो नहीं है तो शायद उसमें चेंजेस आती रहेंगी. बिजनेसेस आर ऑफ फॉर अ मंथ, और जो छोटे बिजनेसेस हैं, एक दुकानदार है या छोटा बिजनेस है, उनके पास कैश फ्लो या सेविंग्स वो नहीं होती जो बड़े बिजनेसेस के पास हैं. सो व्हिच मींस अगर 1 महीना या 2 महीने बंद कर देंगे बिजनेस जो किया, सो देयर इज गोइंग टू बी जॉब ले ऑफ्स एंड पे कट्स. सो व्हाट डू बिजनेसेस डू? What do they do? How can they avoid this pitfall? What do they do? Well, it's interesting that you're talking about how do they avoid, because what we see inevitably कि जब भी layoffs होते हैं, चाहे आप बड़े business को देख लें या छोटे business को देख लें, one of the first groups to suffer are your vulnerable groups. One of the first groups to suffer actually, अगर आपके पास कोई female employee है, तो she is the one who will get laid off first. That's partly to do with the secondary status जो कि ख़वातीन का हमारे मुल्क में है, particularly with respect to the labor market, and partly has to do with the fact कि employers के ज़हन में होता है कि अच्छा एक औरत है तो उसके घर में और ना कोई और तो होगा जो कि पैसा कमा रहा होगा. एक तो ये है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उसमें से we have to think about कि ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे आएगा, कौन जो है सबसे पहले ले ऑफ होगा. उसके अलावा एक चीज जो हमें कंसिडर करनी चाहिए, जो आप और बारी साहब ने भी कहा है, कि बिजनेसेस कांट इमीडिएटली स्टार्ट देयर कैश फ्लो प्रोसेस, राइट. अब उसमें जो जैसे गवर्नमेंट ने भी जो रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है, देव सेड कि अच्छा आपका जो लोन है हम उसकी इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं, लेकिन ये जो इंटरेस्ट रेट कम किया है और जो आपके लिए लोन की टर्म्स बेहतर हुई हैं, वो उससे बेनिफिट किसको होगा? उससे बेनिफिट इन ऑल लाइकलीहुड आपके बड़े बिजनेसेस को होगा जिनका कैश फ्लो दोबारा शुरू हो जाएगा जब आपका लॉकडाउन कम होगा. छोटे बिजनेसेस क्या करेंगे? उनके लिए सर्वाइव करना एंड टू गेट बैक ऑन द फीट इज गोइंग टू बी दैट मच हार्डर. नाउ वन ऑफ द रिकमेंडेशंस दैट वी हैव, ये हमारे डिपार्टमेंट के जो कॉलीग्स हैं उन्होंने कुछ सेट फॉर्थ किया है. एक हम ये कर सकते हैं कि द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड सम सपोर्ट,
कि आपके जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस होते हैं उसमें यू कैन आस्क कि प्रोक्योरमेंट जो है वो स्मॉल बिजनेसेस को उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी जाए। आपके बिजनेस ओनर के लिए जो उनका प्रॉफिट मार्जिन है उसमें दे कैन ट्राई एंड मेक कंसेशंस कि आप एम्प्लॉइज को ले ऑफ ना करें एंड मे बी कट समवेयर एल्स, बट आई थिंक दैट्स अ टफ कॉल। बिजनेस ओनर्स को अपने बारे में भी सोचना है, अपने घर को भी चलाना है। एम्प्लॉइज को अगर वो बर्डन पास ऑन कर सकते हैं टू द एक्सटेंट दैट दे कैन अवॉइड इट, दे माइट, लेकिन टू एक्सपेक्ट दैट टू टेक प्लेस अक्रॉस द बोर्ड अक्रॉस ऑल बिजनेसेस आई थिंक इज अ फार होप एट दिस पॉइंट। And also, the economy was just beginning to recover allegedly, and then this happened. Dr. Ali Cheema, I have another question. Of course, no business can survive in isolation. तो अगर हमने जो partially पाकिस्तान में कुछ खोल भी दिए business, construction for instance, I'll come to that. Isolation में उसका चलना मुश्किल है, but there's something called the global value chain. तो अगर दुनिया सारी बंद पड़ी हुई है और हम कुछ businesses खोल भी दें, तो जो global value chain है, उसका क्या impact होगा पाकिस्तान में और पाकिस्तान की economy में? I think, Adil, the first thing is that we have to go back to where you started before one comes to this question. And you started by really asking us what is here. So I think it is extremely important to keep in mind as this discussion goes that there are two facts about this current crisis. One is this is not a one-time shock. This is going to be a series of shocks. Because shocks जो आ रहे हैं वो labor market की disruption, death की वजह से नहीं आ रहे हैं in a lot of countries like Pakistan. पाकिस्तान में actually अभी mortality rates काफी low हैं, right? So shock जो आपका आ रहा है वो आ रहा है preventive measures की वजह से, because आप death को prevent करने के लिए economy को जाके recess करते हैं through suppression measures. और ये होता रहेगा because it's not a one-time spread. अब आप खोलेंगे इकोनॉमी को, फिर आप दोबारा बंद करेंगे जब एस्केलेशंस होनी शुरू होंगी केसेस की, राइट? सो वी आर गोइंग टू बी इन दिस हॉल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दूसरी जो बात है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि ये एक जनरलाइज रिसेशन नहीं है। सो काफी ऐसे सेक्टर्स हैं जो बहुत बुरी तरह हिट हो रहे हैं। ये सारे लोग, तमाम लोग जो आपसे बातें करें, इनकी जिंदगी में काम बढ़ गया है, कम नहीं हुआ इन द पास्ट मंथ, because LUMS has gone online. So there are sectors, a number of sectors जहाँ पे shortages हैं। उसमें सबसे बड़ा सेक्टर जो है वो हेल्थ केयर का सेक्टर है इस वक्त, राइट? जहाँ पे एक्चुअली डिमांड आपकी एस्केलेट कर रही है और आपकी सप्लाई रिस्पॉन्स जो है वो नहीं आ रही। जब आप उन सेक्टर्स को देखते हैं कि जो सेक्टर्स इवन इन सप्रेशन में खुले रह सकते हैं, उन सेक्टर्स के दो फीचर्स हैं। एक वो फीचर ये है कि वो उनमें फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, यानी कि आपकी बिजनेस भी शायद कम नहीं होगी उसकी वजह से कि आपको तो हम पूरी जिंदगी स्क्रीन पे देखते रहे, राइट? हम आपको फिजिकली तो नहीं देखते जाके। दूसरी बात ये है कि बेसिकली उसमें दूसरा फीचर जो है कि उसमें हाईली स्किल्ड लोग जो हैं वो एम्प्लॉय होते हैं, राइट? जिनकी कोई पर्टिकुलर स्किल होगी और कनेक्टिविटी होगी। इसकी वजह से जो आपकी इनइक्वालिटी है सोसाइटी में बिटवीन लो स्किल्ड और हाई स्किल्ड लोग, वो भी बढ़ती चली जाएगी, बिकॉज एक्टिविटीज सच एज कंस्ट्रक्शन, सच एज ट्रांसपोर्ट, ये सारी वो एक्टिविटीज हैं जो सप्रेशन से हिट होती हैं और ये फिजिकल लेबर को इकट्ठा करती हैं, और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जो इम्पैक्ट होते हैं वो लो स्किल्ड लोग हैं। सो एक तो ये मेरे ख्याल में दिस इज द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट जिसमें हमें ये सारी बातें करनी चाहिए। अब one way to move forward, and that is partly related to global value chains, but that is also related to the national response, that we have to think completely out of the box. We have to think about putting the economy onto track for transactional arrangements that do not require physical contact. And I think that there is an opportunity here, because you know what we have seen globally across the world. अब आप इस वक्त अमेरिका में जाएं और आप कहीं बुक शॉप या कपड़े की दुकान पे चले जाएं, तो आपको जो है उधर जो कमोडिटीज मिलेंगी उसकी जो तादाद होगी और उसकी वैरायटी होगी वो कम होगी बनिस्बत एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के, राइट? बल्कि आप बेवकूफ अपने आप को समझेंगे, मैं दुकान क्यों आया था, क्या काश मैं अपने कंप्यूटर पे चढ़ के ये ऑर्डर कर देता। But if you actually look at those delivery systems, they are not there in places like Pakistan.
राइट रिटेल से आपकी ये भी मिडिल क्लास एरियाज में आपको ज्यादा नजर आता है कि आपके डिलीवरी सिस्टम्स बन रहे हैं which are call based delivery systems but they have not been extended to cities. So I think there has to be an enablement for these to kickstart these processes. I don't think markets themselves will be able to bear जिसको हम कहते हैं economics में the fixed costs of getting onto these particular types of platforms. बिकॉज होगा क्या कि उसमें जो आपकी ब्रेड्थ है ना इकोनॉमी की जो खुली रह सकती है इवन इन पीरियड्स ऑफ सप्रेशन वो आप ब्रॉड करते जाएंगे और उससे आप काफी सप्लाई चेन और बेसिकली यू नो सॉर्ट ऑफ सम सेक्टर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. आई थिंक हेल्थ और एजुकेशन में इसका बहुत ज्यादा पोटेंशियल है फॉर पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ थिंग. बट इसके लिए बजट में देन दे हैव टू मेक अरेंजमेंट्स के जो एक्सेस है टू टेक्नोलॉजी टू कॉल सेंटर्स उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका जो फाउंडेशन है वो तो पब्लिक सेक्टर को प्रोवाइड करनी पड़ेगी. प्राइवेट सेक्टर की छोटी छोटी फर्म्स मिलके ये काम नहीं कर सकते. Dr. Rabi, you know, we keep referring to budget or Pakistan, and of course, you know, it is a complex issue. और गवर्नमेंट ने अब इसको किसी तरीके से मैनेज करना है. कुछ सेक्टर्स ग्रो करेंगे, लाइक डॉक्टर अली सेड कि एजुकेशन फॉर इंस्टेंस या हेल्थ, और कुछ जो हैं उनमें भी मसले होंगे. आई वांट टू नो कि अब बजट का जो वक्त आएगा तो एक जानवर जिसका नाम जीडीपी है और इस पे बहुत लड़ाई होती है कि 4% है जी, 6% है जी, 2% है जी, हम लोग तय ही नहीं कर पाते जीडीपी ग्रोथ क्या है. तो what is GDP for non-economists, and what do you think will happen this year to our GDP जो पहली 1-2% के ऊपर हम सुनते आ रहे थे. जी ये जीडीपी से हम कहते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन से मुराद ये है कि इस साल टोटल हमारी नई प्रोडक्शन कितनी हुई, नॉट एग्जिस्टिंग गुड्स जो कि पहले से बनी हुई थी, नई प्रोडक्शन कितनी हुई और उसमें से कितनी प्रोडक्शन जो है वो आगे जाके मार्केट में बेची गई. राइट. सो इन सम वेज दिस इज न्यू इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज बीइंग जनरेटेड इन दिस पर्टिकुलर ईयर. सो इट्स अ रीजनेबली गुड मेजर. इसके इश्यूज भी हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जो मार्केट्स में नहीं होती, जिस तरह हाउस वर्क है या फिर सबसिस्टेंस है या बट जो हमारी कई इनफॉर्मल इकोनॉमीज में होती हैं चीजें, वो सही तरह रिकॉर्ड नहीं होती. बट जेनेरिकली स्पीकिंग दैट्स व्हाट वी मीन बाय न्यू इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज बीइंग जनरेटेड. I think that generally my sense is कि जो अभी इस वक्त जो IMF के जो estimates हैं वो ये हैं कि even China, okay, which is the fastest growing economy in the last 25-30 years, okay, 1990 से लेकर 2020 तक सबसे fastest growing economy consistently has been China. अभी 2 दिन पहले उन्होंने अपने numbers revise किए हैं, and they are going to have last quarter. That's why these quarter numbers are really important. अभी हमने पाकिस्तान के देखे नहीं हैं. China has revised its economic projection of GDP downwards by 6%. That's huge, right? Chinese economy plus 8% पे on the average grow करती है. तो ये इस तरह उन्होंने ये कहा है कि पिछला जो क्वार्टर था वो ये जो is the heart of the COVID-19 का जो क्राइसिस है चाइना में, उसकी वजह. अब हमारा जो है ये अली की बात सही है कि अभी हमारा क्राइसिस जो है वो सही तरह समझ नहीं आ रहा है. दिस क्राइसिस इज काइंड ऑफ अ वेरी डिफिकल्ट क्राइसिस. इट्स काइंड ऑफ स्लोली अनफोल्डिंग. हमारा क्राइसिस अभी इज नॉट लाइक न्यूयॉर्क सिटी जिसके अंदर एक मोर्टालिटी का एक पेंडेमिक आया हुआ है. मैं रोज सुबह डॉन में मोर्टालिटी के नंबर्स देखता हूँ, 143 से अभी उस तरह के कुछ नंबर्स हैं. केसेस भी कोई इतने ज्यादा नहीं लगते, लेकिन हमें डेटा का नहीं पता. तो ये एक so the big question is this crisis is still unfolding. And what direction it takes, we just don't know. So my sense is कि पहला जो quarter है उसमें a lot of it is, as Ali said, preventive, but also there's a lot of uncertainty. देखिए जब uncertainty होती है economy में, तो पहली चीज होती है कि people stop making long-term investments. People start keeping buffer stocks, क्योंकि हमारे पास mechanisms to smooth चीजें नहीं हैं. अभी हमें ये नहीं पता कि इस वक्त ज्यादातर जो employers हैं, even the most well-off ones, are basically saying कि यार हम गारंटी करते हैं नौकरियां till May 31st. ठीक है, 2 महीने May 31st के बाद all bets are off. Even लोगों के जो पुराने हैं. So I think जो immediate short term में होगा ये है कि इस quarter में GDP को क्या हुआ है. पाकिस्तान में I don't know. I mean, ये जो sectors हैं, I hope we have some good measures of really trying to understand जो हमारे vulnerable. Moving forward, as Ali said, I think ये जो budget है,
I would say this requires a radical rethinking of the social compact in Pakistan. I think जो दो सेक्टर्स जो इस वक्त हमें आगे लेके जा सकते हैं, बहुत इकोनॉमिक्स में भी और सोसाइटी में भी, are health and education, which is the foundation of human capital. That's the long run growth. मेरी अपनी एक स्टडी है अर्थक्वेक में, जिसमें हमारा ख्याल है कि हम लोग बहुत रेजिलियंट हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो शॉक से इतने रेजिलियंट नहीं होते. So this has a potential of really imposing a very long-term shock on young people. School disruptions हो रही हैं, health disruptions होंगी. So I think this is society का, this idea of national security हो गई या economic development हो गई. I think we have to really pivot towards health and education, and I would say really expand our resources in expanding our health capability and education. And I think these are the sectors जो कि in any case हम economy को आगे लेके चलेंगे. We have a question from a friend, Shazal Naveed Chima. Shazal, if I mispronounce your name, please forgive me. And the question is, are the incomes in government sector expected to be deducted up to a year as they were this month? Who's going to answer that? Who's going to bet on that? कि हुकूमती जो दोस्त हैं वो एक साल तक अपनी तनख्वाह में कमी ले लेंगे. Anybody, any volunteers? Otherwise, Dr. Faisal, I'm going to throw this at you. I also have another question for you. But first, where's your money? Would the government employees, agree to reducing their salaries for a year? What do you think? नहीं, इसमें भी देखें दो तीन चीजें हैं. एक तो ये है कि कुछ लोगों ने कुछ डिपार्टमेंट्स और कुछ लेवल्स पे लोग जो हैं वो अपनी तनख्वाह में थोड़ी बहुत कटौती खुद कर रहे हैं. एक तो वो चीज़ है. मैंने अभी तक ये नहीं देखा कि गवर्नमेंट ने कोई ज़बरदस्ती कटौतियाँ की हों अक्रॉस द बोर्ड. मेरे ख्याल ज़्यादातर वो रही है कि महीने की तनख्वाह दे देंगे कुछ लेवल्स तक. दूसरी बात ये, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा नंबर तो ऐसे ग्रेड्स में है जहाँ पे सैलरी काटना फ़िलहाल वैसे ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी सैलरी इतनी है नहीं. सो जितने हमारे ग्रेड 1 से लेके लेट्स से जितने भी 15, 16, 17, 18 जहाँ भी तक भी जाएं, वहाँ तक इतनी सैलरीज है नहीं है कि वो कट इस तरह का कट बर्दाश्त करे. सो आई डाउट इट वेरी मच कि हो सकता है गवर्नमेंट थोड़ा फ्रीज कर दे कि इस साल हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इंक्रीज जो रेगुलरली आता है, हो सकता है उसमें थोड़ी सी तब्दीली ऊपर नीचे हो, वो इतना ना आए. लेकिन आई डोंट एक्सपेक्ट कि वो एक्चुअली कट करेंगे सैलरीज. और हर महीने वाली काटने वाली बात तो बिल्कुल नहीं होगी मेरे ख्याल में. सॉरी अदील, आप कह रहे थे कोई और सवाल भी? Yeah, but before I get to that, off the record, has LUMS done that? Has LUMS reduced any salaries, or have people volunteered to do that? नहीं, हमने कोई सैलरी रिड्यूस नहीं की. अभी तक तो एम्प्लॉयमेंट पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं आया. कोशिश जाहिर है यही है कि ना आए. जैसे ताहिर कह रहे थे कि आगे जाके क्या होता है वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, अभी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है. लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई और किसी किस्म की कटौती नहीं हुई फिलहाल. Okay. Dr. Hadia, I have a question for you. I'm going to keep mixing slightly macro and micro questions on microeconomics. Not that I know the difference. Which is, मैं पढ़ रहा था, I think this was this morning, yesterday, कि Saudi Arab ने per force जो migrant workers हैं बहुत सारे, उनको from 3 to 6 months छुट्टी दे दी है. Maybe that's happening in other countries as well. So if those workers come back to Pakistan, would that impact the society, the economy at all? Is the number large enough, or would it not matter? What do you think? So I think कुछ हफ्ते पहले एक इंडिया के ऊपर स्टोरी आई थी, which was कि migrant workers were returning to their villages, और जो villages में लोग थे, they were barring their entry. In a lot of cases, they were saying कि अच्छा आप लोग अंदर नहीं आ सकते क्योंकि आपको खुद वायरस हुआ होगा. Pakistan के केस में we of course have a very large migrant population, both international and in fact domestic migrants. And one of the things that we are looking at is कि जो आपके migrants हैं, बाहर से आ रहे हो ना आ रहे, इंटरनल माइग्रेंट्स की रिटर्न आप देखेंगे जब आप ले ऑफ्स हो रहे होंगे. आपके जो आपके मोस्ट वनरेबल सेक्टर्स हैं, जो कि आपके इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, जो आपके डेली वर्कर्स हैं, जब उनको डेली वेज नहीं मिल रही होगी तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग इन ऑल प्रोबेबिलिटी वापस चले जाएंगे, क्योंकि उनके पास सिटी में सर्वाइव करने का मैकेनिज्म नहीं है. अब जब वो वापस जाएंगे तो दो चीजें होंगी. एक तो ये है कि आपका जो वर्कर जो कि सिटी में रह रहा था, वो आपकी in a lot of cases was the sole provider for the family or the major provider for the family. तो फैमिली के ऊपर एक हिट आएगा.
Agriculture to some extent can reduce that hit. जो आपके एग्रीकल्चर से आपको जो subsistence मिल रही है, that can reduce the hit. लेकिन अगर आपको कोई हेल्थ शॉक आ जाता है, खुदा ना खास्ता अगर कोई और शॉक मिलता है, तो उसकी हिट एब्जॉर्ब फैमिली नहीं कर पाएगी. उसके अलावा जब ये आपके वर्कर्स वापस आएंगे, these jobless workers, उसका फैमिली डायनामिक्स से भी बहुत बड़ा असर होगा. आपका एक वर्कर वापस आया है, he is frustrated, he has no job, there's a lot of uncertainty कि बिजनेस वापस उसको हायर करेगा कि नहीं करेगा, इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है. So that frustration is going to spill over for the rest of the family. It's also going to have a major impact on the dynamics within the family. आपके बच्चे भी घर पे हैं, आपका जो मर्द बाहर था वो वापस आ गया है, उसकी अपनी डिमांड्स हैं कि फैमिली को किस तरह से चलाना है. जो आपका रीओरिएंटेशन हुई थी फैमिली की, वो दोबारा से चेंज होगी. तो आपके जो हिट्स आ रहे हैं वो एक तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे आ रहे हैं, दूसरा आपके फैमिली डायनामिक्स पे भी आएगा. Dr. Lichima, you want to add to what Dr. Hadia just said? I think this is जो आपने सवाल किया ये बहुत अहम सवाल, because हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और एक फैक्ट जो डॉक्टर अंद्राबी बार बार बात करते हैं कि अगर आप पिछले 3 या 4 दिहाइयों पे पाकिस्तान में सॉर्ट ऑफ हाउसिंग स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें एक मेजर इम्प्रूवमेंट आई है कि इवन देहातों में पर्टिकुलरली जो डेवलप ज़रा ज़्यादा हैं, जहाँ पे एग्रीकल्चर रोबस्ट है, वहाँ पे कच्चे घरों से लोगों ने पक्के घरों की तरफ मूव करना शुरू कर दिया. इसका जो फ्यूल था और आपकी जो मैक्रो स्टेबिलिटी का फ्यूल था वो है इंटरनेशनल रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा. आई थिंक बिकॉज हमारी एक्सपोर्ट्स की जो ट्रेजेक्ट्री हिस्टोरिकली रही है वो काफ़ी स्टैग्नेंट रही है. तो आप पाकिस्तानी इकोनॉमी को समझें कि एक पेशेंट है जो बेसिकली एक मरीज है जो एक हॉस्पिटल में लेटा हुआ है और उसके कुछ ऑर्गन्स जो है वो फंक्शन कर रहे हैं, कुछ ऑर्गन्स जो है वो शॉक में. जो आपका एक्सपोर्ट का ऑर्गन है वो तो 10 साल 20 साल से शॉक में. जो आपका ऑर्गन उस जिस्म को और उस इंसान को चलाता जा रहा है वो बेसिकली रेमिटेंस का ऑर्गन. और ये जो नंबर्स डॉक्टर अंद्राबी ने दिए, जो चाइना का मैसिव जीडीपी ड्रॉप है, मेरे पास इस वक्त यूरो एरिया के भी नंबर्स हैं जहाँ पे मतलब बिटवीन जनवरी और फरवरी बेसिकली वीकली जीडीपी ग्रोथ कोई 0.2% पॉजिटिव पे रही. और सिंस द 17th of February जो है ये फ्रॉम 0.2% गिर के अब ये -0.3% पे आ गई. दिस इज द यूरो एरिया. सो इसको हम इस वक्त हेल्थ पेंडेमिक की बात करते हैं. ये एक इकोनॉमिक कंटेजन या एक इकोनॉमिक पैंडेमिक है, ये एक नेशनल एपिडेमिक नहीं है. उसका जो सबसे बड़ा इफेक्ट आएगा वो आएगा बेसिकली आपकी रेमिटेंसेस के ऊपर. इससे आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इफेक्ट होंगे, जिसका मतलब है कि आपकी जो बरामदाद और दरामदाद करने की जो सकत है वो नेगेटिवली इफेक्ट होगी. आपकी जीडीपी के जो नंबर्स हैं दे आर गोइंग टू बी प्रोबेबली वर्स अफेक्टेड देन प्लेसेस लाइक चाइना. और तीसरी जो चीज है कि ये जो आपकी इक्वलाइजेशन का एक जरिया था ऐसे इलाकों में जहां से इंटरनेशनल लेबर जाती थी, जो कि एक बहुत बड़ा इक्वलाइजेशन का प्रोसेस था, वो आपका अब बहुत ज्यादा डिसरप्ट होगा. तो दीज आर अजम्पशंस इस वक्त जो आई होप कि हमारे जो बजट प्लानर्स हैं वो इन अजम्पशंस को बहुत केयरफुली मद्देनजर रख रहे हैं और इन फोरकास्ट पे काम कर रहे हैं ताकि जो अगला बजट हो वो कुछ इसकी मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज को सॉर्ट ऑफ जो है वो कर सके. डॉक्टर ताहिर, रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट पहले कम किए, फिर थोड़े और कम किए, फिर और कम किए, अब वो शायद 9% पे कर दिए हैं. व्हाट डज दैट मीन एंड इज दैट गुड फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान वेयर स्टेट बैंक रिड्यूसेस द इंटरेस्ट रेट? आजकल एक इकोनॉमिस्ट के अंदर एक प्राइवेट जोक है कि अगर हमारे पे मार्स से इन्वेजन हुआ तो हमारा रिस्पांस क्या होगा? हमारा रिस्पांस होगा कि हम इंटरेस्ट रेट कम करेंगे. सो या आई मीन दैट्स अ जेनेरिक रिस्पांस. देखिए, इस वक्त बड़ा जरूरी है कि इकोनॉमी में एक बेसिक लिक्विडिटी हो. ये हमने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस शॉक से सीखा है कि एक तो
fundamentals of the economy get affected, कि लोगों का काम बंद हो रहा है, ये हो रहा है, इस तरह की चीजें हो रही हैं. There are fundamentals. But then what happens is कि the liquidity, जब funding dry up होती है, वो एक अपना एक अलग crisis create हो जाता है उसका. So the most important responsibility जो historically central banks की होती है is what is called being a lender of the last resort. कि इस वक्त एक economy के अंदर एक liquidity की जरूरत. Now पाकिस्तान में जरा complicated है. अगर again अमेरिका की example ने जहाँ जिसका हमें सबसे ज़्यादा पता है इस वक्त economy में क्या हो रहा है, तो जो उनका जो Federal Reserve Bank है, that has actually gone completely overboard, right? उसने जो है वो कह दिया है कि अब वो उसने liquidity इस तरह प्रोवाइड किया है कि आपको बेसिकली ऑलमोस्ट लाइक नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स पे लिक्विडिटी. एनीबडी हु वांट्स मनी विल गेट इट. हाँ ठीक है. अब चाहे वो लोन की सूरत में है, और उनकी कांग्रेस ने स्मॉल बिजनेस एक्ट किया, उसमें उन्होंने पहले 2 हफ्ते में कहा कि हम $350 बिलियन स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करेंगे. वो 2 हफ्ते में पैसा खत्म हो गया. इतनी ज्यादा डिमांड आ रही थी उनको. अब एक सेकंड टियर उसका आ रहा है. सो आई थिंक ये जो इंटरेस्ट रेट कम करना है, इसकी लिमिटेशन है पाकिस्तान में, which somebody who knows the data better can tell me, is कि हमारी जो स्मॉल बिजनेस है, जिसने हादिया ने कहा पहले और अली ने भी इसका अलूड किया है, कि जो स्मॉल बिजनेस है उसकी जो फंडिंग जो सोर्सेज हैं वो इतने ज्यादा फॉर्मल सेक्टर में इतने नहीं हैं. जो बिल्कुल छोटे लोग हैं, राइट, जिस तरह हमारे ये छोटे दुकानदार हैं या ठेले वाले हैं, या इस तरह की जो चीजें हैं जो कोई सा इनफॉर्मल सेक्टर में, वी नीड टू मेक श्योर कि मनी गेट्स इन देयर हैंड्स. तो अब चाहे वो स्मॉल बिजनेस लोन्स हैं, चाहे वो रीफाइनेंसिंग है, हमारे पास अब डेटा भी नहीं है. हमें ये नहीं पता कि हमारे पास स्मॉल बिजनेसेस हैं कितनी, और अगर हैं तो उनको किस तरह हम टारगेट करें, और अगर उनकी लिस्ट कहाँ से लेके आए ताकि उनको पैसा दें. सो माय फीलिंग इज कि वी नीड टू गेट मनी. इस बजट में अगर मैं थोड़ा रेडिकल हूँ तो व्हाट आई वुड डू इज कि जितने भी रिटर्निंग माइग्रेंट्स हैं जिनका हमारे पास डेटा है, बिकॉज इनके वीजा स्टेटस हैं, ये लोग वापस आए हैं, आई वुड रियली स्टार्ट नॉट अ माइक्रो बट अ रीजनेबली बिग लेंडिंग स्कीम फॉर देम, कि जितने भी ये लोग जो माइग्रेंट वापस आए हैं इनको कोई पैसा दिया जाए. इन्होंने थोड़ी सेल्फ सिलेक्शन शो की है कि ये बाहर की दुनिया में जाके काम करके आए हैं, दे मे हैव सम आइडियाज कि ये अपने बिजनेस शुरू करें. सो आई नीड टू गेट मनी इनटू देयर हैंड्स. I'd like to get money into those hands. I think a generic interest rate cut will help, and I think they probably need to do it even more. But we need to make sure it gets into those other hands जो कि पाकिस्तानी इकोनॉमी की जो structural issues हैं उनकी वजह से शायद मुश्किल होता है थोड़ा सा. But I would be much more aggressive right now. Dr. Faisal, I have a question for you from a friend, Mohammed Bilal. But before I do that, Pakistan has a very young population. I think we're among the top 20 where we have the youngest population chunk. It's called the youth bulge. So एक नौजवान ही है, Mohammed Bilal, and that's my assumption कि वो youngster है. But his question is, how can the government improve employment rates in youth during COVID-19, and not just COVID-19, maybe after that as well? Government के businesses बंद हैं, कारोबार है कोई नहीं, import export सब बंद हैं. तो इसमें नौजवानों को हुकूमत कैसे देगी रोजगार? अच्छा, रोजगार देना एक तरह से तो सबसे आसान चीज है. आप उन्हें पैसे पहुंचाना शुरू कर दें, रोजगार मिल गया. वो कीन्स ने कहा था ना कि लोगों को लगा दें कि वो जमीन खोदें और फिर उसको भरते, फिर खोदें फिर भर दें, उसके पैसे दिए जाएं उन्हें. तो अगर आपने उस तरह की स्कीम करनी है, जिसे एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स भी कहते हैं, पब्लिक वर्क स्कीम वगैरह, वो तो सकती हैं, लेकिन उसमें फिर उस तरह का काम तो आप कर सकते हैं. मेरा ख्याल है जो वज़ीर आज़म ने भी कहा कि भाई कंस्ट्रक्शन सेक्टर को खोलना है, जो सड़कें बाकी चीज़ें खोलनी थी, उसका एक बेसिक मकसद यही था कि वो इस तरफ को जो पब्लिक वर्क्स टाइप चीज़ बट प्राइवेट सेक्टर भी वो ये कर सके. लेकिन आई वांट टू कॉम्प्लिकेट दिस अ लिटिल बाय सेइंग कि देखिए अभी अली ने भी बात की थी ना, हेल्थ और एजुकेशन आर द मेन सेक्टर्स, और इस पे ज़्यादा बात हो रही है. आई डोंट थिंक कि देयर इज एनी टू, बिल्कुल सही फरमाया अली ने भी और ताहिर ने भी कि भाई इन दोनों सेक्टर्स में हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत भी है, आगे जाना पड़ेगा. लेकिन प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि हमारा जो यूथ है बहुत सारा, वो बहुत अनस्किल्ड अनएजुकेटेड बैठा हुआ है. आप जो पिछले जो नंबर्स हैं हमारे लिटरेसी के हों या जो आउट ऑफ स्कूल के हैं, जिन्होंने स्कूल कंप्लीशन ड्रॉप आउट्स वगैरह हुए हैं, वो इतने बड़े हैं कि उसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं ऑफ इवन बेसिक स्किल लेवल्स, वो शायद हमें मिल ना सकें बहुत ज़्यादा बच्चों में, एज वी ट्रांजिशन टुवर्ड्स एन इकोनॉमी दैट रिलाइज अ लॉट मोर ऑन इंटरनेट, on online trading, on online this system, that system. तो उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट्स ह्यूमन कैपिटल में होनी चाहिए थी वो नहीं हुई भी.
वो अब करना तो उसमें तो थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि अगर हम अभी शुरू भी करेंगे उसके लिए, बिल्कुल अली की बात बिल्कुल बजा थी कि उसके लिए जो मैकेनिज्म बनाना है कि किस तरह करनी। देखिए हमारा ये पहले भी मसला था ना, हम बड़े ऐसे से कह रहे हैं कि 20 मिलियन बच्चा 5 से 16 साल का स्कूलों से बाहर बैठा था, हम उन्हें स्कूलिंग नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे, हालांकि हमारे पास वो अगर टेक्नोलॉजी वगैरह थी और तो हम क्यों नहीं कर पा रहे थे थ्रू इंटरनेट वगैरह, ना हमारे पास वो जो भी वजह थी वो हम नहीं कर पा रहे थे। अब इस वक्त वो हो सकता है और ज्यादा मसला हो जाए, क्योंकि अब हम फिजिकल स्कूल बहुत सारे बंद कर चुके हैं, पता नहीं वो जून 1 को खुल पाएंगे या नहीं, या अगस्त सितंबर में खुल पाएंगे नहीं, क्योंकि अब हो सकता है जब तक वो नहीं आती, इसकी वैक्सीन नहीं आती, तो हमें बड़े केयरफुली आगे चलना पड़े, लार्ज गैदरिंग्स ना करें। तो फिर हम किस तरह ये करेंगे? वो इन्वेस्टमेंट्स काफी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी चाहिए, और फिर ओवर टाइम वो एजुकेशन और स्किल लेवल डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि बेस लाइन में तो नहीं है। और बहुत बड़ी तादाद है यूथ की। आप अगर कुछ ऐसा, पहले हमने एक यूथ रिपोर्ट भी की थी, उसमें भी ये कहा था कि 60-70% ऑफ यूथ कीप सेइंग कि जी अगर हमें सेकंड चांस मिले तो हम दोबारा एजुकेशन में जाएं ताकि हम अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकें। वो बच्चे भी अभी बाहर ही बैठे हैं इस वक्त, उनको किस तरह की जॉब्स प्रोवाइड करेंगे, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज आप दे पाएंगे, दैट रिमेन्स आई थिंक अ वेरी बिग क्वेश्चन। अनस्किल्ड जॉब्स इतनी ज्यादा क्रिएट करना गवर्नमेंट के लिए, वो बजट कहाँ से आएगा, कैसे करेंगे, वो एक बहुत बड़ा मसला रहेगा। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल बजट को टोटली रीओरिएंट तो करना पड़ेगा, लेकिन फिर ये अब 3 साल 5 साल का हमें सोचना पड़ेगा कि उसमें हेल्थ और एजुकेशन के साथ क्या करें कि हम वहां पहुंच सके जहां पे फिर ये इन बच्चों को इन सेक्टर्स में और इनसे रिलेटेड सेक्टर, रिटेल और बाकियों में फिर जॉब्स मिल सके। ये तो बहुत लंबा काम है। आई थिंक वी शुड डन दिस लाइक 70 years ago, यू नो। डॉक्टर हादिया, एक टर्म यूज की डॉक्टर ताहिर ने, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी पाकिस्तान की बहुत ज्यादा है। वी कीप हियरिंग कि एक लार्ज चंक ऑफ द इकोनॉमी, उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। इनफैक्ट द प्राइम मिनिस्टर सेड कि जो वर्कर्स हैं हमारे पास, वो चूंकि वेस्ट में तो उनका कोई डेटा होता है, हमारे पास तो सबका डेटा भी नहीं है। तो जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है पाकिस्तान की, डू वी हैव सम आइडिया कि उसका साइज क्या है और उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? बिकॉज दे कांट इवन अप्लाई फॉर रिलीफ टू द गवर्नमेंट, दे नॉट इवन, यू नो, दे हैव नो डॉक्यूमेंटेशन। सो टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट दैट। Sure, and absolutely. हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का जो एस्टिमेट है, वी आर लुकिंग एट कि नॉन एग्रीकल्चर हमारी जो लेबर फोर्स है, दैट अकाउंट्स फॉर 78% ऑफ ऑल जॉब्स, एंड दैट इज अ मेजर अंडर एस्टिमेट। आपका इनफॉर्मल सेक्टर, एक और एस्टिमेट है जैसे कि डोमेस्टिक वर्कर्स अमाउंट टू 8 to 13 million, अगेन अ मेजर अंडर एस्टिमेट, क्योंकि आपकी जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, एक तो उसको काउंट करना वैसे ही मुश्किल है, उनके पास इंसेंटिव भी नहीं होता कि अपने आप को डिक्लेयर करें, बिकॉज उनका सारा बिजनेस ही इसी पे चल रहा है कि वो अंडर द रेडार है। अब उनके लिए एक तो रिलीफ पैकेजेस के लिए अप्लाई करना, स्पेशली बिजनेस से रिलेटेड रिलीफ पैकेजेस के लिए अप्लाई करना, आउट ऑफ द क्वेश्चन so to speak हो जाता है। One place where they can perhaps get some relief is जो आपके ट्रांसफर प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं, but those are targeted to the abject poor. अब ये जो आपकी informal economy है, is it really abject poor or not? That's an open question. Some data we have been able to gather. हमने अपना जो लेबर फोर्स सर्वे उसको थोड़ा बहुत ऑगमेंट किया है, उसको थोड़ा बहुत फाइन ट्यून किया है, तो हमें थोड़े बहुत बेहतर नंबर्स अब मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी मेजर अंडर एस्टिमेट है ना। इस अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का सबसे ज्यादा, एंड आई थिंक आई सेड दिस अ नंबर ऑफ टाइम्स नाउ, सबसे ज्यादा जो मेजर चंक है वो खवातीन है। खवातीन घर बैठ के जो काम कर रही हैं, उनका तो इन अ लॉट ऑफ केसेस ऐसा होता है कि अगर उनके पास कोई सर्वेयर पहुंच भी जाता है और वो कुछ कह भी देती हैं कि जी मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वो सर्वेयर जो है उनको डिसरिगार्ड कर देता है। तो अब उनको आप रीच कैसे करेंगे? लाइक आई सेड, इफ दे आर कमिंग अंडर द पॉवर्टी नेट, तो उनको फिर भी कुछ कैश ट्रांसफर मिल जाएंगे। If they can apply through a micro entrepreneur का relief package, again maybe they'll get some relief. लेकिन जैसे हमने पहले बात की है, जो आपके very small business owners हैं, उनके साथ आप सोच ये रहे हैं कि eventually they will see their customer base come back. The way that the economy is going, the way that colleagues here have been talking, it seems unlikely that bounce back is going to take place very quickly. तो
इनके लिए जो चीमा साहब ने पहले कहा कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, दैट बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट। नाउ जो आपकी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, डिजिटल वॉलेट्स आ रहे हैं, या थिंकिंग अबाउट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स दैट कैन कनेक्ट दिस मार्केट, दैट बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट। अब उसमें जो बारी साहब ने कहा है कि बजट, और अंद्राबी साहब ने कहा है कि बजट को आप थोड़ा ट्वीक करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर ले हो, इंफ्रास्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स वर्चुअली आपके वेरियस प्लेटफॉर्म्स, आपके वेरियस वर्कर्स, आपके ये स्मॉल बिजनेसेस, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस गोज बैक टू बारी साहब अदर पॉइंट अबाउट द यूथ एंड उनके अंदर क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कैन दे डू दे रियली हैव द स्किल सेट टू टेक एडवांटेज ऑफ वेयर we sitting in our offices and homes connected to the internet think the economy should go towards. So it's a tall order, it's a difficult task, but it seems to be the task that all of us need to gear up for. Dr. Cheema, recently government announced किया कि अगर आपने loan लिया हुआ बैंक से, so you can defer the principal payment for a year, maybe or 6 months. I was very happy, लेकिन मैंने loan ही को नहीं लिया हुआ बैंक से. But there are companies and individuals who perhaps can pay that loan, but now that the facility is there, they will not pay that loan. How does that impact, the supply of money? Does it impact the supply of money at all? And if it does, how does it affect it? I mean, more than money, it's going to impact basically output and jobs, right? And I think कि दो किस्म की firms हैं, वो firms हैं who have pockets. तो उनको तो interest rate remission से actually फायदा होगा, because they will. I was talking to a very big industrialist the other day, and they were thinking of cutting wages of their workers, basically starting this month, and now they've actually deferred this decision for 2 months, and a lot of that was contingent on the interest rate cut that they received in a timely manner, right? और वो जो ताहिर बात कर रहे थे कि ये शायद और इंटरेस्ट को गिराना चाहिए इस वक्त आपको लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए। बट एक और इसमें बात है कि देन आपके ऐसे बहुत बिजनेसेस हैं और इस तरह की छोटी छोटे कारोबार हैं बेसिकली जहां पे इनकम का लॉस हो गया है, लेकिन लाइबिलिटीज तो कम नहीं हुई ना, किराया तो देना था, राइट? ट्रेड क्रेडिट जो है वो अक्रू कर है। अब जो उस महीने की आमदन का लॉस है, जिसने उस डेट को या वो जो लाइबिलिटी था उसको जाके पे करना था, वो तो वापस नहीं आएगा। तो जब हम बात करें, और ये एक बात है जो हादिया ने बात की, एक इम्पोर्टेंट बात है कि 1918 के पेंडेमिक, जो कि एक और सिर्फ ग्लोबल पेंडेमिक था, ऑब्वियसली पेंडेमिक होता ग्लोबल है, उसके अंदर एक्चुअली जो डेटा एटलीस्ट उन ममालिक का जहां पे ये काम हुआ है, अमेरिका, यूरोप, उसमें ये दिखाता है कि इकोनॉमी जो थी वो काफी जल्दी से बाउंस बैक कर गई थी, राइट? लेकिन इसमें जो इशू आएगा वो ये आएगा कि a lot of these businesses will be carrying debts, और ये डेट्स किसी बैलेंस शीट पे नहीं होंगे, राइट? और इनको किस तरह आपने एड्रेस करना है will become a major problem in the disrupting basically these businesses. तो जो हादिया बात कर रही हैं, ताहिर भी बात कर रहे थे, to go in and provide support that is targeting small businesses and also workers in these businesses. अभी आप देखते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम बड़ा गवर्नमेंट लेके आई वो लेड ऑफ वर्कर्स का लेके आई, जिसकी सेंस भी बनती है, but in some sense you also want programs that ensure कि ले ऑफ ना हो रहे हो वर्कर। बट उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी है वो लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है, बिकॉज जब आप अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में ऐसे बिजनेसेस के ऊपर टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें बहुत स्कैमिंग हो सकती है, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट द ब्यूरोक्रेसी विल फेयर इन गोइंग डाउन दिस रूट। बट वी हैव टू बी वेरी बोल्ड, एंड वन वे टू डू दैट इज कि जो भी आप सपोर्ट दे रहे हैं उसको डॉक्यूमेंटेशन के साथ टाई करें, यूजिंग द टेक्नोलॉजी टूल्स दैट हादिया इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। सो दिस शुड बी अ कैरेट, लेकिन उसमें जो असल चीज अंदर होगी कि बिजनेसेस विल फेयर कि कल आप उनको टैक्स कर लेंगे तो वो डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे। तो आपको एक पूरी अरेंजमेंट करनी है विच इज अ क्रेडिबल अरेंजमेंट कि इस वक्त की आपकी क्या ऑफर है विच शुड बी टाइड टू डॉक्यूमेंटेशन, और उसके बाद अगली ऑफर आपकी क्या है। सो यू हैव टू सेट सम प्रोजेक्शंस अबाउट व्हाट इज द नेट ऑफ टैक्स दैट विल अप्लाई टू दीज पीपल। तो आपको अपनी फिस्कल पॉलिसी भी अपनी एसएमई पॉलिसी के साथ कन्फिगर करनी पड़ेगी और होप करना पड़ेगा कि जो आप पॉलिसी डिक्लेयर करते हैं उसको क्रेडिबल समझें
लोग आपके, अदरवाइज ये स्कीम्स फेल हो जाएंगी। डॉक्टर इंद्राबी, आई ग्रू अप हियरिंग कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। लोग तो कुछ अमीर हैं, कुछ कंपनीज अमीर हैं, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, इसलिए हम एजुकेशन पे खर्च नहीं करते, करप्शन हो जाती है, हेल्थ पे खर्च नहीं करते। Now we are hearing, the government is giving out bailout packages worth billions of rupees to people and businesses. अगर remittances भी नहीं आ रहे इस दफा, और tax collection as we discuss उसका भी लगता है कि target नहीं हो पाएगा, where is that money coming from, or where will it come from? How will the government have money? ये तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में केन्स के जमाने से एक सवाल आप पूछते हैं, which is कि basically what you are doing is you are borrowing from your future selves, right? I mean, इस वक्त अगर आपने आप को हम सिर्फ अपनी करंट सिचुएशन में रिस्ट्रिक्ट रखें और कहें कि जी हम सिर्फ वही खर्च कर सकते हैं जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है, तो वो तो हमारे पास पैसा नहीं है। हमारी टैक्सिंग कैपेबिलिटी इतनी कम है। So the only thing we have is this is a commitment by society to itself, which is saying that we are spending money on the premise that we do not want this economy to completely tank and the society to go under. And the idea is that when things get better, we will be in a much better position to repay that money. That's the classic reason why we take debt. And I think this is what is called debt ka ek classic reason hota hai, which is called smoothing consumption. You do not want your consumption, which is what we live on, to track your income, क्योंकि income में volatility बहुत है इस वक्त। अगर आप income की volatility के ऊपर चले गए कि आज तो पैसा नहीं है तो इसलिए आज कुछ नहीं कर सकते, so your consumption should be much more. So I think this is requiring. I think we need to have a deeper conversation on when society goes into debt. Why does it go into debt? Not all debts are bad, sure. But some debts are necessary. Some debts are bad. If you borrow money and throw a party, then there is no consequent income stream that is being generated, which will later on pay off the debt. But अगर जिस तरह Italian Prime Minister ने कहा ना कि lots of times people died to save the country. Now you have to borrow some money to save the people. I mean, अगर जिंदगी मौत की ये चीज है, तो फिर हुकूमत तो इसी दिन के लिए है ना. But this idea that the public sector, that's why the public sector is different from the private sector. Because the public sector has a legal capacity to tax. And then, because the public sector is kind of indefinitely lived, it also has the ability to borrow. Okay, the government की जो borrowing capability है, वो एक individual से ज़्यादा है. So I think for both those reasons, I think this is, if there is a time, now with suitable caveats, in the sense के आपको आगे के बारे में भी सोचना है, but this is a time to now create some more long-term planning, ironically, in the middle of a short-term crisis. I just disagree with you where you borrow money and throw a party. That's a good debt. How can that be a bad debt? No, I'm just kidding with you. These days people troll everybody on the net. People don't have a sense of humor. Dr. Faisal, we hear of this oil war going on between Russia and Saudi Arabia, is it? And the prices going down. Pakistan ko isme koi fayda hai? Can we take advantage of this, of the oil prices going down? बिल्कुल फायदा है. जब भी प्राइस कम होगी तो हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो कम हो जाता है, जो कि बहुत बड़ी एक कंस्ट्रेंट है. दोनों वो जो अली ने बात की थी, रेमिटेंस और एक्सपोर्ट मिला के भी बड़ी मुश्किल से इंपोर्ट बिल पूरा होता है. अगर वहाँ प्राइसेस कम होंगी तो थोड़ा सा रिलीफ हमें फॉरेन अकाउंट पे भी मिल जाएगा, और जो डॉलर एक्सचेंज रेट है उस पर भी बिल्कुल मिलेगा. अब उसका सवाल ये होता है कि उसके बाद जो प्राइस कम हुई है उसका फ़ायदा आप लोगों को डायरेक्टली देंगे, या वो गवर्नमेंट जो है वो रख के किसी और फॉर्म में देना चाहती है, राइट? सवाल ये नहीं होता कि गवर्नमेंट देगी नहीं, वो दायरा है अज्यूमिंग के किसी की जेब में नहीं जा रहा है. वो तो आएगा तो लोगों को ही कि वो इमीडिएटली प्राइसेस कम कर दें, या अगर वो प्राइसेस किसी हद तक मेंटेन करते हैं तो जो गैप क्रिएट हो रहा है बाय इंटरनेशनल प्राइस कम होने से, डोमेस्टिक प्राइस जरा ऊपर रखने से, वो टैक्सेशन और दूसरी फॉर्म में वो गवर्नमेंट रख के वो सारा कुछ फंड कर सकती है, जो कि जिसकी अब हम बात कर रहे हैं सारी. लेकिन वो कितना करे वो सवाल एक देखने वाला होता है. इस वक्त तो वैसे ही जो डिमांड है पेट्रोल प्रोडक्ट्स की और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वो बहुत कम हुई हुई है. आपने लॉकडाउन किया हुआ है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए वो इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है.
बहुत सारे लोगों ने, आपने देखा होगा पिछले दिनों आर्ग्यू किया था कि फिर आप पास ऑन कर दीजिए सारा, ताकि वो फौरन लोगों को मिल जाए। लेकिन मेरा ख्याल है, आई थिंक वी नीड अ मच मोर नुआंस पॉलिसी हियर आल्सो, कि अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा प्राइसेस ऊपर रख सकती है, ज़्यादा अगर पूरा पास ना करे, थोड़ा पास कर दे, बाकी रखे, ताकि वो पैसा फिर उन सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सके जिनकी हम बात कर रहे हैं। और ये मैं दोबारा एम्फोसाइज करने लगा हूँ जो हादिया अली और ताहिर ने कहा था, कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी हमें अपने लोगों को जो नौकरियों जिनकी छूटेंगी उनको सपोर्ट करने के लिए, स्मॉल बिजनेस, माइक्रो बिजनेस को वापस लाने के लिए, और बिजनेसेस को जो जिनको बहुत बड़ा शॉक एक मिला है, अभी एक है और वो सीरीज ऑफ शॉक्स आएंगे, उनको दोबारा चलाने के लिए या चलता रखने के लिए हमें काफी ज्यादा पैसा चाहिए। वो वजीर आज़म ने कई दफा कहा है कि जी अमेरिका ने इतना बड़ा पैकेज दिया, हम सारा कुछ मिला के सिर्फ 8 अरब डॉलर दे सके हैं। तो वो किसी ना किसी तरह उसकी फाइनेंसिंग हमने करनी है जितना ज्यादा वो कर सकेंगे। सो इसलिए आई हैव अ फीलिंग कि फायदा तो बिल्कुल है, जितना ज्यादा इंटरनेशनल प्राइस गिरेगी वो होगा, उसका यूसेज कैसे करना है उसकी पॉलिसी हमें सोच समझ के बनानी पड़ेगी। Dr. Hadia, we need to have money to spend. The government needs to have money to spend, which means जो capital outflow है मुल्क से बाहर, and of course the PM has been talking about that, कि corruption हो जाती है या हुंडी से लोग पैसे बाहर भेजते हैं या डॉलर बाहर चले गए हैं, लीगल है या इलीगल है, anyway that's an outflow of capital. इसको रोकने का तरीका क्या? Can the government do anything about this, especially in this time where we need the money? I think when it comes to capital outflow, the government needs to be a little wary. तो मुझे याद है जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में डॉलर अकाउंट्स फ्रीज हुए थे, उसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आया था ना। फ्रॉम द गवर्नमेंट्स पर्सपेक्टिव आप कैपिटल आउटफ्लो को रोकने की कोशिश करें, लेकिन उसकी वजह से जो ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हुआ था आपकी इकोनॉमी में, because of that you had a lot of people then opting for keeping the dollars abroad rather than bringing them into the country because they were afraid कि अच्छा कभी और भी ये हो सकता है। अब कैपिटल आउटफ्लो को कर्टेल करने का जो मार्केट बेस्ड सोल्यूशन है वो तो ये है कि आप अपनी इकोनॉमी को इतना अट्रैक्टिव रखें कि पीपल वांट टू कीप द कैपिटल इन दिस कंट्री। ऑफ कोर्स ड्यूरिंग अ पैंडेमिक दैट इज डिफिकल्ट टू डू। हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, गिवन कि मोस्ट कंट्रीज आर इन द सेम सिचुएशन, ये कैपिटल आउटफ्लो जाएगा कहाँ, इससे मिलेगा क्या? So I'm not so sure if that is really a concern that we should have at this point, in the context of what we need to really be focusing on is, as you have been rightly saying, where do we get the money from? But not only that, how to spend this money much more effectively. What are the sectors we should be thinking about? Agar hum, let's say for through policies we are able to keep the capital in this country, where do we spend it? Budget, that's what the budget really needs to be focused on, कि आपने जो आप पैसा रख भी पा रहे हैं कंट्री के अंदर, उसको किस तरह से यूटिलाइज करें so that the pressure on our economy, the pressure on people and the pressure on the healthcare system in particular gets reduced. Dr. Cheema, I'm going to ask you a general question more, but others can also kind of butt in. What are our learnings so far? What are our economic learnings so far? Or is it too early for that? Are we still in a shock? कुछ सीखा अभी तक हमने, या अभी तो धमाका हुआ ही है, अभी तो हमें होश ही आ रही है कि क्या हो रहा है? नहीं, आई थिंक ये तो एक बहुत sort of rude wake up call जिसको कहा जाता है, ये वो है कि जो असल बात है कि अगर आप देखें ये सारी फ्लैटनिंग द कर्व की लोग बात करते हैं, उस फंक्शन क्या होती है कि आपका एक सर्टेन हेल्थ केयर की कैपेसिटी है, तो वो किस किस्म की कैपेसिटी को आप देख रहे होते हैं, आप वेंटिलेटर्स की अवेलेबिलिटी को देख रहे होते हैं और क्रिटिकल केयर की कैपेसिटी को देख रहे होते हैं, और वो आप अज्यूम करते हैं एक सर्टेन लेवल पे है फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल पीरियड्स, और जब पैंडेमिक आता है तो आप उसको फ्लैटन करते हैं ताकि आप उसको बढ़ा सकें। पाकिस्तान में वो कैपेसिटी क्लोज टू जीरो है। तो ये चीज ये बताती है कि ये पिछले 50-60 साल के अंदर हम हेल्थ केयर की क्रिटिकल कैपेसिटी नहीं बना सके, जिसका नॉर्मल पीरियड्स के लिए भी वो सफिशिएंट नहीं है। मैंने बड़े लोगों को, कंप्लेसेंट लोगों को ये बात करते हुए सुना है कि जी ये तो पूरी दुनिया में नया पैंडेमिक आ गया, इसको कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नहीं,
आपकी वेंटिलेटर्स की कैपेसिटी इवन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के लिए सब ऑप्टिमल है. दिस इज अ रूड वेकअप कॉल. ऑल दैट इज हैपनिंग इज कि उस पे अगर स्ट्रेस थोड़ा सा भी बढ़ेगा, अगर ये नंबर्स थोड़े से भी बढ़ने शुरू हो जाएं, राइट, जिसका इम्कान भी है, तो बेसिकली आप सडनली एक बहुत डायर सिचुएशन ऑफ डेथ के अंदर पिवट कर जाएंगे. फिर दूसरी जो बात आपकी आ रही है कि आपकी पब्लिक सेक्टर आउटरीच की कोई, जो आपकी पब्लिक हेल्थ आउटरीच है उसकी कैपेसिटी नहीं. इसकी कोई बात नहीं कर रहा इस वक्त. एक वैक्सीन आ जाती जो सबकी ड्रीम सिनारियो है. आज तक पाकिस्तान ने यूनिवर्सल वैक्सीन प्रोग्राम्स को सक्सेसफुली नहीं चलाया. उसकी क्या वजह है? उसकी 3 वजूहात है. आपके पास पैसे नहीं है टू रन यूनिवर्सल वैक्सीन प्रोग्राम, आपके पास मैन पावर नहीं है टू रन अ यूनिवर्सल वैक्सीन प्रोग्राम बिकॉज आपका पब्लिक सेक्टर आपने लिमिट किया हुआ है, और तीसरी आपके पास बात यह है कि आपके पास मॉनिटरिंग और इंसेंटिव सिस्टम्स नहीं है कि वो जो वर्कर्स हैं वो काम डिलीवर कर सकते हैं, और चौथा है सोसाइटल हॉस्टिलिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो बेचारे पोलियो वर्कर्स जाके अपना काम करते हैं उनको सोसाइटी से कोई शाबाश नहीं मिलती, उनके ऊपर तशद्दुद होता है बेसिकली. तो ये चीजें आपकी कल कोविड-19 की वैक्सीन अगर आ गई, आप कैसे यूनिवर्सल प्रोग्राम चलाएंगे, आप कैसे उसके लिए पैसे लेके आएंगे? ये चीजें एक बहुत नया नैरेटिव चाहिए इकोनॉमी के बारे में कि पब्लिक सेक्टर की कुछ जरूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसकी फाइनेंसिंग जरूरी है, उसके लिए पब्लिक सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना जरूरी. ये एक दूसरी अवेकनिंग है. तीसरी अवेकनिंग ये है कि लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन में एक फायदा है कि आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, बट जब आपको मरात को फिर सरकार को आपको मरात देनी है तो फिर वो मरात भी नहीं मिलेगी. तो ये आपकी सोसाइटी और स्टेट के दरमियान एक, जिस ताहिर ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, कॉम्पैक्ट, नया बनना पड़ेगा कि जिसमें बेसिकली एक अरेंजमेंट बननी पड़ेगी जिस अरेंजमेंट में दोनों इकट्ठे फॉर्मली चल सकें. अगर आप नहीं करेंगे तो जो भी शॉक्स हो, चाहे वो पैंडेमिक शॉक्स हो या इकोनॉमिक शॉक्स हो, वो आपकी रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी को लिमिट कर देता है. ये इस तरह है कि एक पेशेंट मर रहा हो लेकिन वो आपको इजाजत ना दे कि आप टेस्ट कर सकें उसके ऊपर और ये पता कर सकें कि यार इसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि आप देख ही नहीं सकते उस पेशेंट को. तो इस जो है एक लिमिटेड गवर्नमेंट अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के माइंडसेट से हमें निकलना पड़ेगा. लेकिन इसके लिए जो हादिया ने कहा कि एक ट्रस्ट का डेफिसिट है, और एट द हार्ट ऑफ इट इज दैट ट्रस्ट डेफिसिट विच जो बहुत मुल्कों में है, दे हैव ओवरकम दैट, बट इन अ नंबर ऑफ कंट्रीज दैट ट्रस्ट डेफिसिट या इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट डेफिसिट that basically cripples these countries to even deliver good economic growth basically. Dr. Faisal, very quickly, you want to add to what Dr. Cheema said? Do we have any economic learnings so far? Very quickly. सिर्फ 2 छोटी सी बातें करना चाह रहा था. एक ये कि इट्स वेरी क्लियर कि डेटा का जो रोल है वो कितना ज्यादा है. हमें क्या मुसीबत पड़ रही है इस वक्त बहुत ज्यादा कि हमारी ज्यादातर चीजों के बारे में हम कह रहे हैं डेटा नहीं है. अगर हम स्मार्ट मॉनिटरिंग करना चाहें, स्मार्ट वो लॉकडाउन्स करना चाहें, बहुत सारी जगहों पे हमें मसला दे. सो डेटा सिस्टम्स में इन्वेस्टमेंट किस तरह होती है, वो उसके लिए पब्लिक सेक्टर का बहुत रोल है. सो आई वांट टू एम्फसाइज कि गवर्नमेंट को बहुत और सोसाइटी को रीथिंक करना पड़ेगा कि किस तरह हमने अपने डेटा सिस्टम्स और डेटा जनरेशन, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम और उनका यूसेज वगैरह कैसे देखना है. ये एक साइड है. इसी से लिंक जो अली ने भी बात की, मेरे ख्याल में बहुत बड़ी लर्निंग ये है जो कि बड़े अरसे से लोग कह रहे थे, लेकिन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कि सोसाइटी में पब्लिक सेक्टर का रोल क्या है वो हमें दोबारा रीथिंक करना पड़ेगा. मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ की बहुत बात होती है. एजुकेशन हेल्थ बगैर पब्लिक सेक्टर के नहीं चल सकते. आज से बहुत अरसे पहले से हमने ये कहा कि जी प्राइवेट सेक्टर आ गया, स्कूलों में भी आ गया, फलानी जगह भी आ गया, हॉस्पिटल्स में भी आ गया, उन्होंने बना लिए, इसलिए पब्लिक सेक्टर जो है उसकी आहिस्ता आहिस्ता रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय डिफॉल्ट बाय डिजाइन जिस तरह भी है वो कम करते गए हम रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह डिस्पाइट 25A एंड सो ऑन. लेकिन आज अगर आप ये देखें कि क्या कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. क्यों कुछ मुल्कों ने कहा हम नेशनलाइज कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, स्पेशली हेल्थ सेक्टर में, लेकिन और जगहों पे भी वो यही वजह हो रही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए इन प्लेस वो नहीं है, और बहुत ज़्यादा एक्सटर्नैलिटीज़ और पब्लिक गुड एलिमेंट की वजह से वो आएगा भी नहीं
अगर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को आप ये चीजें देते रहेंगे और पब्लिक सेक्टर का ऑप्टिमली वेल डिफाइंड रोल नहीं होगा. So I just wanted to emphasize these 2 points. Dr. Andrabi, 2 questions. We only have 2-3 minutes left. Quickly, Muhammad Wajid asks, why is dollar rising? वो कह रहे हैं कि इकोनॉमीज तो ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश कर रही है, डॉलर बढ़ता जा रहा है. भाई ये क्या जादू है, ये क्या तिलिस्म है? So very quickly, what's going on here? Yeah, Iska, typically what they say is that, there is a, the question you ask is, why do people hold on to dollars? And there is one motive which is sometimes called the safe haven motive, HAVE and safe haven motive, which is in moments of crisis, people would like to keep their assets in a liquid form. And globally, the most commonly used liquid form is the US dollar. So typically, this is very, very, very typical. In crisis, in moments like this, you will see people shift from, let's say, less liquid forms to more liquid forms, and typically it's in the form of the US dollar. Okay. And my next question is, जो बहुत से जो नौजवान देख रहे होंगे, उनके दिलों की धड़कन है कि लम्स के जो ग्रेजुएट्स हैं इस साल के, अगले साल के, they're looking for job. What are their job prospects? What do you see? What do you tell them? That's a good question, yaar. मैं खुद एक I am Faisal and I are involved in this MPhil program. और हमारी this was supposed to be our triumphal moment, which is our first class graduating in a few months, and we had worked very hard with them. They were very well trained, and most of them actually by March actually had job offers. Like the majority of them had job offers starting when they graduated. Well, guess what? All of those offers stand suspended. Every single one of them. Now, maybe not. Listen, मैं दो बातें कहूँगा. Pehli is a little depressing, which is data. Again from the US, but I think this is people who graduate in recessions. Okay. So if you look at the cohort that graduated in 2008 in the beginning of the US recession, जब मशहूर recession हुई 2008 की, उनको, by the time it took them to catch up to earning levels of people who graduated in a non-recession years, is 5 to 6 years. So basically, the circumstance of the time you start your job, because your initial job की जो है, ये बहुत स्टडीज हैं कि आपकी जो पहली नौकरी है वो काफी ज्यादा डिटरमिन करती है कि आपकी आगे की कम से कम अगले 5-7 साल की ट्रेजेक्टरी क्या होगी, और अगर उसके अंदर डिसरप्शन आए, इट्स रियली डिफिकल्ट टू डील विद इट. ओके, सो दैट्स वन पार्ट. So that's the negative side of it. I think the positive side of this is कि जो अली कह रहा था जिस तरह के, और फैसल ने भी, कसम ने कहा, हदिया ने, all of the people said it, कि there is room now for a different conceptualization of this economy. And I think people with skill sets that typically graduate from places like LUMS, people who are motivated, who have the technical skills, who have adaptability, resilience, the ability to reconceptualize things, reframe questions, I think उनकी बहुत सख्त demand होगी आगे. Business as usual बहुत कम होगा. So what I'm thinking is that, yeah, there'll be a disruption. I mean, my sense is that this disruption, जो immediate disruption, is going to be about 18 months. I think, famous last words. And I mean, who knows? I think everything is changing every week. But I think ये class graduate करेगी और जो अगली class graduate करेगी, I think इनके issues होंगे. But I think in another 4 or 5 years, life doesn't end at 25. That's what I would tell the students. There's a lot of time ahead of them. Don't worry. I have much more to worry than they do. Dr. Ali Cheema, you want to add to what Dr. Andrabi said? Job prospects for LUMS graduates this year, next year? मैं सिर्फ 2 बातें करना चाहता हूँ. मैं ये exactly जो ताहिर ने इस चीज पे एंड की कि ये एक immediate shock है. इन लोगों का इतना scale advantage है कि ये अगर 5 साल या 10 साल का perspective लें तो ये तो recover कर जाएंगे. लेकिन ये एक moment of national crisis भी है. और ये एक और तरीके से देखा जा सकता है कि ये जो 1 साल है जिसमें शायद जॉब अंदर तो आपको दिक्कत हो, लेकिन ये एक मोमेंट है जहां पे आप एज कम्युनिटी पीपल, एज पीपल ट्राइंग टू सपोर्ट द पीपल ऑफ द नेशन इन दिस क्राइसिस, उसमें ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं. और जो लम्स ने किया है,
जब earthquake आई 2005 की के LUMS की faculty और LUMS की student body was at the front line. And it was an inspirational moment. I think a lot of us grew up in that moment, and felt part of the community, part of the nation. And then business as usual comes back. So I think they should consider themselves as social leaders who can work with community organizations, help with outreach at this particular point in time. And that is taking 1 year off for a very worthwhile cause, or maybe 2 years off for a very worthwhile cause. So I think we should end with inspiration and hope rather than dejection. Before I ask my last question to Dr. Hadia, one little thing. 2-3 session pehle, we had the VC of LUMS, and I asked him the same question. And he made a very interesting point. He said, if I was an employer, a year, 2 years from now, I would ask the person, what did you do during that crisis? What was your role? And I thought that was fantastic for an employer to ask a young person, what were you doing? Because that would be a character test for them. So that was a very interesting thing for an employer to employ. Last question, Hadia. Assuming, wishful thinking, कि जी महीना 2-3 बाद we go back to what we call normal. In fact, I was reading a research this morning which said, allegedly, the virus has a 70-day lifespan, and then within the 56th day. So with some little miracle, we just might go back to our normal. Anyway, whenever that might be, how would you redesign or re-engineer the economy from here on, what we've learned? ताकि दोबारा कुछ हो तो इतना shock ना लगे. Anything that we need to do or you need to do as economists? Let me start by saying that, and I think a lot of people have now mentioned this, return to normal is going to be redefined post this pandemic. One of the things that, as a researcher who works on the household, is of particular interest to me is how are we going to rethink about the work-life balance? This pandemic has highlighted to us more than anything else कि जो आपका reproductive work है, that is not as easy or as little. I mean, it doesn't require as little time as we may have previously thought. And that there is a role to play for everyone when it comes to childcare, when it comes to household duties. So thinking about the work-life balance as we come out of this pandemic is something that we need to turn to more and more, not just as researchers, not just as economists, but everyone needs to think about that. And then secondly, I don't think I can re-emphasize what my colleagues have already been talking about, the health sector and the education sector. As economists, as development economists, हम सबका यही ख्याल है कि आपका जो human capital है, it has one of the most crucial roles to play in sustainable development. And what this pandemic has brought to the fore more than anything else is that the public sector has a huge responsibility when it comes to these two sectors, the health and education, and that we really need to be focusing on that as a country if we want to come out stronger. Thank you. And I want a woman to have the last word on this session. My mom will be very happy. Thank you so much, all of you, Dr. Hadia, Dr. Lichima, Dr. Faisal, Dr. Ndarabi. Hopefully we'll do another session. There's so much learning for people, I'm sure, and there's so much that we still need to discuss. Thank you so much for your time and for your insightful ideas. Apna khayal rakhein, stay indoors. And everyone who's been watching, stay safe and stay indoors. Apna khayal rakhein. Thank you for watching. Khuda Hafiz.